वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम संडे टेस्ट नंबर 2 की केमिस्ट्री पोर्शन की डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। In a container, a gas is filled with a volume of 100 decimeter cube at 53 degrees centigrade. If the temperature is increased by 326, the new volume is. So सबसे पहले हम लिखते हैं V1 is equal to 100. Then T1 is equal to 53. Since हम चार्ल्स लॉ फॉलो कर रहे हैं तो हमने T1 को कन्वर्ट करना है किस में, केल्विन्स में। तो इट इज़ इक्वल टू 53 प्लस 273 326 केल्विन। अब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है बाय 326 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले टेम्परेचर था 326 केल्विन, इसमें 326 सेंटीग्रेड का इजाफा किया है। सेंटीग्रेड में इजाफा और केल्विन में इजाफा एक ही होता है, तो हम इसको 326 लिख सकते हैं। सो इट बिकम्स 652 केल्विन. So now we have equation V1 over T1 is equal to V2 over T2. So V1 is 100, T1 is 326, V2 is unknown and T2 is 652. So V2 is equal to 652 multiplied by 100 divided by 326. So इनको cancel करें तो the new volume is 200 decimeter cube. Which of the following molecules is not linear in geometry? So BeCl2 beryllium second group का member है, इसकी geometry linear है। CO2 again is a linear molecule. HgCl2 में भी हमारे पास linear geometry आएगी। SO2 में sulfur belongs to group 6, so हम 6 electrons बनाएंगे और 2 oxygens को double bond से join करेंगे। So इसमें lone pair present है, this is angular molecule, not linear. According to kinetic molecular theory, the forces of attraction between gas molecules are. So हमारे पास gas molecules के बीच में जो attractive forces हैं, according to KMT, those attractive forces are negligible. Which of the given pair possesses the same geometry? SO3 and SO2. So SO3 is triangular planar and SO2 is angular, so they are not same. BeCl2 and SnCl2. So BeCl2 is a linear molecule with no lone pair. SnCl2 is angular molecule with lone pair, so they are also not same. CO2 and SO2. So CO2 is this molecule and SO2 is again a bent molecule, so they do not have similar geometry. Next we have SO2 and SnCl2. So SO2 is a bent molecule with a lone pair and SnCl2 is also a bent molecule with a lone pair. So they have same geometry. The pressure of a gas is 380 torr. In ATM it would be. So हम torricelli को convert करेंगे ATM में. Base data ये है कि 1 ATM is equal to 760 torricelli. So अब हमारे पास torricelli में temperature है 380. तो ये ATM में कितना होगा X. तो x is equal to 380 divided by 760, which is equal to 0.5. So A is the correct option. Which one of the following molecules has a lone pair on its central atom? So H2O में central atom oxygen है जो छठे ग्रुप का है। So इसमें हमारे पास 2 lone pairs present हैं। CCl4 में 4 क्लोरीन अटैच्ड हैं कार्बन के साथ, there is no lone pair. SO3 में भी 3 ऑक्सीजन सल्फर के साथ अटैच्ड हैं, सो देयर इज अगेन नो लोन पेयर। NH4 प्लस में नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 5, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे और चारों के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, सो इसमें भी लोन पेयर नहीं है। H2O इज द करेक्ट ऑप्शन। A gas enclosed in a container has a volume of 24 decimeter cube at a pressure of 2 atm. If pressure is increased to 8 atm, the new volume is. So हमने प्रेशर को 2 से 8 कर दिया, यानी प्रेशर में 4 टाइम्स इंक्रीज आई है, तो वॉल्यूम हमारे पास उसकी इन्वर्स 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो 24 से 4 टाइम्स अगर वॉल्यूम डिक्रीज करे तो इट इज़ गोइंग टू बिकम 6 decimeter cube. If a molecule has 2 bond pair and 2 lone pair, the electronic geometry is. So एक मॉलिक्यूल में अगर 2 बॉन्ड पेयर्स हों और 2 लोन पेयर्स हों, सो इलेक्ट्रॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनती है क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। लेकिन लोन पेयर्स इस टेट्राहेड्रल को डिस्टॉर्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। A gas at a pressure of 15 atm has a volume of 12 liter.
If the new volume after pressure change is 30 liter, how much the total pressure is decreased? So we apply Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2. So pressure इनिशियल था 15 और उस पे वॉल्यूम था 12. अब हमारे पास न्यू वॉल्यूम है 30, तो हमने नया प्रेशर निकालना है. So pressure is equal to 15 multiplied by 12 divided by 30. So 15 2s are 30 and 2 6 are 12. So the new pressure is 6. अब हमसे पूछा है कि प्रेशर को डिक्रीज कितना किया है. सो इनिशियल प्रेशर था 15, अभी का प्रेशर है 6, तो प्रेशर को हमने कितना डिक्रीज किया है 9 atm. मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ कार्बोनेट आयन इज. सो कार्बोनेट आयन को अगर हम देखें तो इसमें दो ऑक्सीजन्स हैं जो नेगेटिव हैं और सिंगल बॉन्डेड है, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है. सो इट इज प्लेनर इन ज्योमेट्री. ग्राफ बिटवीन P एंड V इन बॉयल्स लॉ इज कॉल्ड. सो P को हम x एक्सिस पे लें, V को हम y एक्सिस पे लें, तो हमारे पास ये जो ग्राफ बनेगा, दिस इज स्टडीड एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो दिस ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ इज कॉल्ड आइसोथर्म. नेगेटिव डिविएशन अकर्स ड्यू टू. सो हमारे पास नेगेटिव डिविएशन होती कब है, जब हमारे पास z की वैल्यू 1 से नीचे चली जाए, यानी दिस इज द नेगेटिव डिविएशन. और जब z की वैल्यू 1 से ऊपर चली जाए तो दिस इज पॉजिटिव डिविएशन. सो नेगेटिव डिविएशन का रीज़न होता है अट्रैक्शंस, और पॉजिटिव डिविएशन का रीज़न होता है considerable volume of molecule. So attractive forces are the reason for intermolecular for negative deviation. If a molecule has a total of 4 electron pairs, which of the following geometries is not possible? So 4 में हमारे पास 3 geometries possible हैं. First is tetrahedral, that is when we have 4 bond pairs and no lone pair. अगर 3 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर हों तो फिर हमारे पास ज्योमेट्री आएगी पायरामिडल, और अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर्स हों तो ज्योमेट्री आएगी हमारे पास एंगुलर. सो हमारे पास इनमें से ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री 4 वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ पॉसिबल नहीं है. चार्ल्स लॉ स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन, सिंपल MCQ, इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. Among the given molecules, which has smallest bond angles? So CH4 has bond angles 109.5, NH3 has bond angles 107.5, SO3 has bond angles 120 degree, CO2 has bond angles 180 degree. So smallest bond angles इनमें से हमारे पास NH3 में present हैं. If a graph is plotted between volume on y-axis and temperature on x-axis, so temperature on x-axis and volume on y-axis. So this is a straight line that we get because volume and temperature are direct quantities. If the pressure is increased, the graph becomes. So now, initially this was the volume and this was the temperature. अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने से हमारे पास वॉल्यूम क्या करेगा, पहले से डिक्रीज कर जाएगा, और टेम्परेचर क्या करेगा, प्रेशर इंक्रीज करने से पहले से इंक्रीज कर जाएगा. सो अब हमारे पास व्हाट हैपन्स टू द ग्राफ एट हायर प्रेशर, तो हायर प्रेशर पे हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, लेस स्टीप हो जाएगा. करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स इज. सो यहाँ से हमने ऑप्शन कहाँ से स्टार्ट करनी है, देखें सबसे बड़ा एंगल होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री वाला ऑप्शन हमें डी में गिवन है, दिस इज 180 डिग्री. फिर वी हैव SO2 एंड देन वी हैव SO3. सो ऐसा नहीं है, SO3 में लोन पेयर नहीं है, ये 120 डिग्री है, SO2 में लोन पेयर है तो इट इज़ लेसर देन 120. तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, इसको जाने देते हैं. देन हम जाते हैं जी ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ 104.5, दिस इज़ 109.5, तो ये ऑप्शन भी गलत लग रहा है. दिस इज़ 107.5 अमोनिया, water is 104.5 and CCl4 is 109.5, तो ये ऑप्शन भी गलत लग रहा है. SO3 120 degree, then PCl3, it is close to 90 degree, almost 90 to 92, and H2S is also 92 degree. So ये ऑप्शन थोड़ा क्लोज लग रहा है, so this is correct. If the temperature of a gas is tripled, the volume of the gas becomes. So temperature को अगर हम
3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी हमारे पास क्या होगा, 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। Which of the following is not true about valence bond theory? It explains the formation of carbon monoxide. This is wrong. क्योंकि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है हमारे पास एक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल और एक एम्प्टी ऑर्बिटल के ओवरलैप से, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कंप्लीटली और एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप नहीं कर सकते, सिर्फ हाफ फिल्ड और हाफ फिल्ड ओवरलैप करेंगे। सो दिस इज रॉन्ग। At a temperature of 27, the volume is 300. What is its volume if the temperature is raised to 327 degrees centigrade? So T1 is equal to 27 degrees centigrade, जो कि केल्विन में कितना होगा, 27 plus 273 is equal to 300. अब टेम्परेचर को हमने रेज किया है 327 डिग्री, तो न्यू टेम्परेचर इज 327, जो कि हमारे पास केल्विन में कितना होगा, 327 प्लस 273 इज इक्वल टू 600। सो हमने टेम्परेचर को किया है डबल, तो वॉल्यूम अगर 300 था तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 600 हो जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलैप इज प्रेजेंट बिटवीन, सो ओवरलैप का हमारे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 1s का ओवरलैप। देन सेकंड शेल में और sp को कंपेयर करें तो सेकंड शेल में ss की बजाय pp ओवरलैप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फॉलोड बाय sp ओवरलैप एंड फॉलोड बाय ss ओवरलैप। सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट शेल वाला ऑप्शन नहीं है। सो अगर फर्स्ट शेल वाला ऑप्शन नहीं है, सेकंड शेल और थर्ड शेल वाले ऑप्शन हैं, तो सेकंड शेल में 2p हैज़ ग्रेटर ओवरलैप। At absolute zero, molecules of a gas have. So at absolute zero, we say all motions cease. But small amount of vibration does exist at 0 Kelvin. So small amount of vibration is present. So this is correct option B. Bond that is formed in HCl molecule is between. सो HCl का बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के 1s और क्लोरीन के 3p के दरमियान। सो इट इज़ फॉर्म बाय 1s 3p ओवरलैप। वॉल्यूम ऑफ अ गैस थ्योरेटिकली बिकम 0 तो वॉल्यूम बिकम 0 एट आइदर 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ 2-ब्यूटेनॉल। सो सबसे पहले हम 2-ब्यूटेनॉल बनाते हैं, तो ये ब्यूटेनॉल आ गई। देन सेकंड कार्बन पे हमने लगाना है डबल बॉन्ड। सो दिस इज़ 2-ब्यूटेनॉल, जिसको हम क्रोटॉन अल्डिहाइड भी कहते हैं। सो इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो 10 सिग्मा बॉन्ड्स हैं एंड 1 2 पाई बॉन्ड्स हैं। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Value of absolute zero in Fahrenheit scale is, so this has been taken from textbook table, this is -459 Fahrenheit. And if we want to convert it, we can also convert F is equal to 9/5 degree centigrade plus 32. So हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल में जब एब्सोल्यूट ज़ीरो होगा तो इट इज़ -273। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इट बिकम्स -459। विच ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म अ पाई बॉन्ड। pp से पाई बॉन्ड बन सकता है जैसे इथीन में है, pd से भी हमारे पास पाई बॉन्ड बन सकता है जैसे ट्रांजिशन मेटल्स में बनता है। sp3 और s से कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर रियल गैसेस द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन केल्विन्स प्रैक्टिकली। तो रियल गैसेस के लिए जब हम टेम्परेचर और वॉल्यूम का प्रैक्टिकल ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ हमारे पास 0 केल्विन से पहुंचने से पहले ही हमारे पास ब्रेक कर जाता है, क्योंकि तकरीबन सारी गैसेस 0 केल्विन पे पहुंचने से पहले ही लिक्विफाई हो जाती है, तो इट ब्रेक्स अप बिफोर रीचिंग 0 केल्विन। Unlike larger gases which show negative deviation before positive deviation, smaller gases like H2 and He show only positive deviation. This positive deviation for H2 and He is observed at.
सो हमारे पास पॉजिटिव डिविएशन जो H2 और He में आती है ये हमारे पास लो प्रेशर पे भी आती है और हाई प्रेशर पे भी आती है, तो इट इज ऑब्जर्व्ड एट एनी प्रेशर। CH बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, सो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के ओवरलैप से। सो इथेन में जो ओवरलैप है वो sp3s ओवरलैप है, मीथेन में भी sp3s ओवरलैप है, इथीन में sp2s ओवरलैप है, जबकि इथाइन में sps ओवरलैप है, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यू टू ग्रेटेस्ट s कैरेक्टर, सो D is correct option. Which law is not used in derivation of general gas equation? So general gas equation derive होती है from Avogadro's law, then from Charles' law, and then from Boyle's law. So Dalton's law is not used in the derivation. Which of the following molecules is not sp3 hybridized? CCl4 is sp3, H2O is also sp3, BF3 is sp2 and NH3 is sp3. तो ये आपके पास इन तीनों में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो ये तीनों sp3 हैं। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो ये sp2 है, सो C is the correct option. Incorrect value of general gas constant is, so this is the correct value in common units. This is also correct. This is incorrect because here we have centigrade. Keep in mind that in the equation PV is equal to nRT, in the equation P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2, या in Charles Law's equation itself. ये तीनों इक्वेशंस यानी चार्ल्स लॉ की इक्वेशन और इससे डिराइव होने वाली ये दोनों इक्वेशंस, इन तीनों में हम सेंटीग्रेड स्केल यूज नहीं कर सकते, तो इनके यूनिट्स भी सेंटीग्रेड में नहीं आ सकते। हाइब्रिडाइजेशन इन अ मॉलिक्यूल पोजेसिंग 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स इज, तो एक मॉलिक्यूल में अगर एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाले मॉलिक्यूल्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जनरल गैस इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन बाय नोइंग इट्स, सो जनरल गैस इक्वेशन के लिए अगर हम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करें तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू P बाय RT। तो अगर हमें गैस का प्रेशर और टेम्परेचर पता है तो वी कैन कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट बॉन्ड लेंथ, सो हमारे पास N2 में ट्रिपल बॉन्ड है जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, ऑक्सीजन में डबल है इसकी बॉन्ड लेंथ भी शॉर्ट है, हाइड्रोजन का साइज ही छोटा है तो इसका सिंगल बॉन्ड शॉर्ट होगा, क्लोरीन हमारे पास थर्ड पीरियड का है और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे लंबी है। अ गैस डिविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट, सो गैस की डिविएशन होती है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर जब उसके प्रेशर को रेज कर दिया जाए और जब टेम्परेचर को लो कर दिया जाए, तो एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अ मॉलिक्यूल A2 हैज़ बॉन्ड लेंथ ऑफ 30 पिकोमीटर्स, तो A2 की बॉन्ड लेंथ है 30 पिकोमीटर्स और A का रेडियस आ गया 50, एंड मॉलिक्यूल B2 हैज़ बॉन्ड लेंथ ऑफ 38 पिकोमीटर, तो इसका B का रेडियस आ गया हमारे पास 90। If they react to form a polar molecule, the bond length AB would be, so अगर पोलर मॉलिक्यूल ये बनाएंगे तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए 15 + 19 इज इक्वल टू 34। तो अब पोलैरिटी की वजह से ये बॉन्ड लेंथ जो है ये शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है तो अट्रैक्शंस की वजह से दोनों एटम्स और क्लोज आएंगे, तो बॉन्ड लेंथ वुड बी लेसर देन 34 पिकोमीटर्स। To study the non-ideal behavior of a gas, a graph is plotted between, तो नॉन आइडियल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम एक्स एक्सिस पे प्रेशर लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं z को। सो ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड compressibility factor B. Choose the correct relationship between given bond energies. So क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन से ज़्यादा है, दिस इज करेक्ट, क्योंकि हेलोजेंस में द ऑर्डर इज क्लोरीन देन ब्रोमीन देन फ्लोरीन देन आयोडीन। फ्लोरीन में 2 छोटे एटम्स के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, इस वजह से फ्लोरीन को आसानी से रिपेल करता है, तो इसके बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। ये फर्स्ट की बजाय थर्ड नंबर पे है, तो क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, दिस इज करेक्ट। विच गैसेज इज मोस्ट नॉन आइडियल, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O2। सो इनके मोलर मैसेज लिखें। सो सबसे बड़ा मोलर मैस है क्लोरीन का, सो दिस इज मोस्ट नॉन आइडियल। विच मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मोमेंट, NH3 इज पोलर, H2O इज पोलर,
CCl4 का हर एक बॉन्ड पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल की शेप है सिमेट्रिकल। तो जिन मॉलिक्यूल्स की शेप सिमेट्रिकल हो उनमें सारे डायपोल्स कैंसिल कर जाते हैं, सो सच मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। For 1 mole of all given gases, ratio of PV/RT is taken, which is closest to 1. So PV/RT की रेशो होती है compressibility factor Z के बराबर, जो कि आइडियल गैस के केस में 1 होगा। तो किसकी 1 के क्लोजेस्ट होगी? जो सबसे ज़्यादा आइडियल होगी। तो सबसे ज़्यादा आइडियल है हीलियम। If dipole moment of a molecule is 0, which geometry cannot be present? So tetrahedral में अगर चारों हमारे पास मॉलिक्यूल्स के साथ जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो सेम हो तो ये नॉन पोलर होंगे। सो इसकी डायपोल मोमेंट 0 हो सकती है। एंगुलर ज्योमेट्री में हमेशा लोन पेयर प्रेजेंट होगा। सो जब किसी ज्योमेट्री में हमेशा लोन पेयर प्रेजेंट हो ये नॉन पोलर नहीं हो सकती। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। The difference 1 minus Z is directly proportional to, so this has been taken from the book, कि एक गैस के कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और आइडियल गैस के कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा हमारी गैस की डिविएशन होगी आइडियल बिहेवियर से। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।